Hello, hi everyone. Welcome to the session. This side Priya Bhatia. And in this specific discussion, we will be talking about that how the industries have been transformed from SDLC to ML to Gen AI now. Before we will deep dive into it, one announcement. From this weekend on Saturday, we will be having a very first live class with Data Careers Launchpad students. So if you are interested to enroll, please do check it out. The link is in the YouTube description. Further, let's get started. And now we will try to talk about that how the things have been changed. When we were working as a software developer, the focus was majorly on writing the code part, writing the rules, right? Now when we shifted to machine learning specific part, our focus gets shifted towards data set, regarding training, model evaluation, uh, choosing the right set of model, right? The thought process completely gets changed. And now as we are shifting towards Gen AI, we will try to understand that how the things have been evolved. I'll talk about in this specific discussion that using LLMs, how the pre-training happened with the help of self-supervised learning, and how the post-training happened using SFTs and RLHFs, so that the kind of response which we are getting from these LLM-based tools will be aligned with the human expectations. So please try to watch the discussion till the very end. I'm pretty sure that you will enjoy it and you will be able to learn a lot from this specific part of a discussion, because that is how things have been changed from software developer lifecycle to Gen AI lifecycle, the way we are working right now in the forms. So with that, let's get started. Let's try to first of all understand that what is the biggest misconception beginners usually have when they start learning about data science. What do you think? What exactly data science people are doing in the current work? Any answers can I get from the chat window? In the chat window, what do you think? What exactly is their daily job as a data scientist people in the companies? What do you think? What they are doing? When I asked these kind of questions to the learners, I got one common answer. So let me see what sort of responses I usually get from here as well. क्या लगता है आप लोगों को कि जो लोग डेटा साइंस डोमेन में काम करते हैं उनका मेजोरिटी ऑफ द टाइम वेयर दे आर स्पेंडिंग? कोडिंग में जाता है, मीटिंग्स में जाता है, या फिर डिजाइनिंग में जाता है, या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को समझने में चला जाता है, कहाँ जाता है? Mm-hmm. So again, over here, many people are saying that it went towards coding. And that's the misconception which people have कि जो लोग भी डेटा साइंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम कोड वर्क ही कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. सो इन रियलिटी when companies hire any data scientist, they don't hire just for the sake of coding the models. No. They hire those professionals who have the ability to understand the business pain points, who have the ability to translate ambiguity or what we say confusion into technical solutions, who can identify whether AI is needed or not, and who can deliver end to end business solution. So that's the, I will say, core purpose of
what we can say, the people who are working in the domain of data science. Today, in this specific discussion, what we will do is we will try to understand that how this complete life cycle works around and how this is different from ML systems. Why GenAI applications have actually built a completely different mindset today, and how basically we're approaching towards solving any problems in data science. Most importantly, that is where maximum confusion people have. Right now, we have two things. One is the traditional ML programming, another one is generative AI. So, when to go for traditional ML systems and when to go for Gen AI? And do we genuinely need traditional machine learning, or we can just work around with generative AI based systems as well? So, all of these things we will try to cover up right now in today's discussion. So, shall we start our session? All good? Can I start? Before this machine learning stage, we had something called as software development. How many of you have worked under software development positions back in 2018, 2017, 2019, or maybe till today? If you're working in domains like Java, full stack, you should be working under SDLC, software development life cycle. How many of you knows about this software development life cycle? So basically what we do over here in this life cycle, we will try to focus on, first of all, requirements. So we will gather the requirements, requirement gathering. Basically, we will try to understand what exactly the client's requirements are. After understanding that requirements, we will design the requirements. Basically, over here, we will try to design the end-to-end architecture. So there is a planning of an architecture. Once that specific part will be done, we usually focus on development. So we design coding specific business logics. Once that specific part will be done, we work on testing stage, where we usually try to do a functional validation. That's why you will observe that the people who are working in software development core areas, they have a developer, they have a tester working around with it. So there are positions with respect to QA positions. These are the positions specifically designed for testing development role, testing roles majorly. So what their main focus is to write a test cases and check that whether the developer's code is working on all the possible test cases or not. And developer role is majorly to write a development of the end-to-end code. So these two parties work together. Developer try to develop the application. Tester tries to test that whether this application is working around with all the edge cases as well. So it's kind of, you can say, functional validation, which is happening over there. Once this part will be done, finally deployment happens. Deployment is kind of, in industries, we say that release happened. Release to the users, who are the core working parties of the specific part. And then once this product release will happen, at the very end, there will be maintenance which will be there. Meaning
that as soon as we will keep on adding more features, there might be bugs which can happen. So bug fixes happens, upgrades happens accordingly. So these are the stuffs which keep on happening side by side. I mean, till today, the companies, the MNCs, for example, Adobe, uh, Atlassian, they are working on these specific stuffs as well, where they have a developers, software developers, they have a tester, Amazon. I mean, these companies still have this kind of environment. So over here, I'm not talking about the what I can say data specific roles. I'm just talking about simply the software development roles. So over here, in these kind of industries, what usually happens? In these kind of industries, I will call it as a traditional softwares. So this was something which is not new. This is from past few years. It is working. But over here, you will see that code simply defines the behavior, right? So if you will write an effective code, your chances of getting a best application will be huge. So it all depends on what is the quality of the code the developer is writing, what is the quality of code tester is writing in terms of executing the test cases, and then your designing will be quite better in the SDLC, in the software development lifecycle. So code is something which is the important factor. Do you agree with me? At least those people who have worked with the specific software development job roles, they should at least know about all these things. Yes or no? But when we talk about data science domain, when we talk about machine learning domain, what do you think is the most important focus? What do you think is the most important focus? This is about traditional software designs where we will be having a code as the most important thing. But I'm saying when we talk about something called as machine learning, what is the most important aspect of it? Any answers? Anyone? Not AI. AI we will come later on. But what is the most important thing in machine learning? Is it code? No, it's not code. Then what else? It's not Python. It's, see, language is kind of a way to write the code. It could be Python, it could be Java, it could be Scala, it could be R, it could be JavaScript. I don't care about it. Selection of model? No, there is something more important than that. Information? That's correct. In other words, can I say that when I'm talking about machine learning based systems, we usually focus more towards data. Yes or no? And that's the main difference. That's the main core difference between traditional softwares versus the machine learning, what we are learning right now, what we are executing right now. So when we talk about something called as machine learning life cycle, that's the core purpose to learn today. Always remember, over here, data, so in ML, data defines the behavior. आपका कोड, आपका सॉरी मॉडल अच्छा प्रिडिक्ट करेगा या नहीं करेगा, whether it performs well or not, whether it will be able to execute well or not, whether it actually have a very good accuracy or not. Everything is determined by a single factor, that is data. बाकी चीजें है कि मॉडल आपने अच्छा चूज किया कि नहीं किया, मॉडल का इवेल्युएशन बेटर परफॉर्म लिया कि नहीं लिया, मैं ये नहीं बोल रही कि वो चीजें जरूरी नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि अगर आपने डेटा ही खराब लिया
तो आप कितना भी बेटर मॉडल चूज कर लो, कितना ही पावरफुल मॉडल चूज कर लो, कितनी ही बढ़िया इवेल्युएशन मेट्रिक चूज कर लो, कुछ भी अच्छा काम नहीं करेगा. डू यू गाइस एग्री विद मी? इज दिस समथिंग विच इज करेक्ट? So when we talk about traditional softwares, there the code is something which is very important. When we talk about machine learning, data is something which is very important. So ML में या in general I will say data science के अंदर data defines the behavior. Software development में code defines the behavior. क्या ये बात समझ में आ रही है? Is this something which is clear to everyone? For example, uh, let's assume that we are working in a scenario of let's say fraud detection. ठीक है, आप एक यूज केस पे काम कर रहे हो और वो यूज केस क्या है? लेट्स अज्यूम दैट यूज केस इज अबाउट मे बी fraud detection. Is it possible? Is it possible? Is it possible to write manually the rules to detect the fraud using code? That's my question to you all. अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज के टाइम पे डेटा साइंस इफेक्टिवली डील भी कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डिजाइन से? चाहे कितना ही बढ़िया डेवलपर हो, मैं बोल रही हूँ, जितना कितना ही हाईली एक्सपीरियंस्ड हो, बट इज दैट पॉसिबल एट ऑल कि हम कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन कर दें जिससे कि पता चल जाए कि ये फ्रॉड है और ये फ्रॉड नहीं है? एज अ ह्यूमन बीइंग, इज इट पॉसिबल फॉर मी? कैन आई राइट सम इंस्ट्रक्शंस? देखो कोड क्या है, एट द एंड ऑफ द डे द कोड इज ऑल अबाउट राइटिंग इंस्ट्रक्शंस. अगर आप बोलते हो कि 2 और 2 को ऐड करना है, तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि 2+2 करना है. अगर आप बोलते हो कि लेट से जीसीडी निकालना है या प्राइम नंबर इवेल्युएट करना है, तो यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रूल्स कि देखो ये प्राइम नंबर होता है, या फिर ये इवन नंबर होता है, ये ओड नंबर होता है. क्या हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रूल्स है क्या फ्रॉड डिटेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए? नहीं है. So we are working in a scenarios where defining the rules is actually impossible. It could be about fraud detection, it could be about demand forecasting, it could be about spam filtering, it could be about recommendation systems. We don't have as such rules over there. And that's why machine actually enters. Machine learning comes into picture. Is the motivation is the motivation behind going towards ML from this traditional software approach is clear to everyone? तो मेन हमने क्या समझा कि लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे हम रूल्स को डिफाइन नहीं कर सकते, जहां पे कोड लिखना फिजिबल नहीं है, और इसीलिए मशीन लर्निंग या फिर मैं बोलूंगी डेटा साइंस स्पेसिफिक डोमेन को ओरिजिन हुआ. नाउ shall we further proceed ahead and talk about the stages under machine learning? If you're okay till so far. If you're okay till so far. Any questions if you have, you can ask, otherwise we can proceed further. So over here we have discussed that why ML, or maybe why effectively machine learning enters. That's what we have learned right now. Okay. So we have that motivation now कि machine learning का reason क्या था, क्यों जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे वो इस स्पेसिफिक सिनेरियो को सॉल्व नहीं कर पाए. ठीक है, अब एमएल में होता क्या है, व्हाट इज द एंड टू एंड लाइफ साइकिल व्हिच इट लुक्स लाइक, एंड देन वी विल डिस्कस इन फ्यूचर कि हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जेन एआई एज वेल. व्हेन वी टॉक अबाउट एमएल लाइफ साइकिल,
we usually focus first on business understanding. When we talk about business understanding, it effectively indicates that what exact problem are we solving over here, है ना? लेट्स से कि क्लाइंट्स ने आपको कोई प्रॉब्लम कम्युनिकेट करी, तो वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, क्या हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, व्हाट्स द एग्जैक्ट यूज केस लुक्स लाइक. सो दैट इज अबाउट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. आफ्टर दैट वी फोकस ऑन डेटा कलेक्शन पार्ट. देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि व्हेन वी टॉक अबाउट एमएल, इन एमएल डेटा डिफाइंस बिहेवियर. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम एमएल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ओवर हियर it all depends ki the company actually stores data in which specific platform. It could be available under their databases. It could be via APIs you have to extract data. It could be from logs you have to extract it. Or this could be a third party data set. Okay? These are the possible options with the help of which we will be able to go towards that specific part wherever data is available, and we will be able to extract it, we will be able to collect it. Once the data collection part will be over, in the next part we will be focusing on data cleaning and what I will say, pre-processing. It means that over here, see, when you try to collect data, this data is actually a raw data. रो डेटा का मतलब होता है कि इसके पास में बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज होंगे, इसके पास में बहुत सारे कैटेगरिकल फीचर्स होंगे. अब हमारी मशीन कभी भी कैटेगरिकल फीचर्स को समझती नहीं है. मशीन्स को सिर्फ न्यूमेरिक डेटा समझ में आता है. तो हो सकता है कि हमें उसको कैटेगरिकल से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल्ड एज एनकोडिंग. एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ओवर हियर the categorical values, categorical features that we will be having to a numeric one. या फिर जो न्यूमेरिक फीचर्स है उसकी हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी. स्केलिंग का मतलब होता है वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट आवर फीचर्स विद इन वन स्पेसिफिक रेंज. या फिर वी माइट हैव टू हैंडल द आउटलायर्स. हो सकता है कि कुछ फीचर्स में एक्सट्रीम वैल्यूज अवेलेबल हो, तो वहां पे हमें आउटलायर्स को टैकल करना पड़ेगा. आफ्टर दिस वी माइट नीड टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज. मिसिंग वैल्यूज का मतलब क्या कि हो सकता है कि लेट्स से आप जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो उसमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज जो है वो मिसिंग है, अवेलेबल ही नहीं है. तो उस केस में यू हैव टू मे बी डू द डेटा इंप्यूटेशन, यू हैव टू फिल द मिसिंग वैल्यूज विद समथिंग इन प्लेस ऑफ दैट. You might need to do feature engineering. फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि यू माइट नीड टू क्रिएट सम न्यू फीचर्स ऑल टुगेदर. तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी when we are trying to work on data cleaning stage और pre-processing stage. क्या मैं ये बातें समझ में आ रही है? Is this something which is clear to everyone? एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि out of all the steps that we are learning in ML life cycle, if you will ask me what is the most important step where the researchers, data scientist people, machine learning engineer people spend maximum time, I will say this is the step where maximum time is actually spent. Maybe you can say approximately 80% of the time. Approximately 80% of the time will be spent over here to work on it. Right? So maximum time we usually spend over here in order to do the encoding, scaling, outliers, missing values, feature engineering part. क्या मैं ये सभी keywords clear हो रहे हैं? Is this something clear to everyone?
देखो, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, तो मैंने क्या बोला, डेटा कलेक्ट करते हुए डेटा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि डेटा के अंदर कुछ कैटेगरिकल एंट्रीज हो सकती है। कैटेगरिकल एंट्रीज का मतलब क्या हुआ? लेट्स अज्यूम कि यू आर वर्किंग विद डेटा जिसमें यू आर सेइंग दैट आई विल बी हैविंग अ कॉलम एज जेंडर, और उसके अंदर यू हैव समथिंग मेल, फीमेल, मेल, मेल, something like this. So over here we will be having a this as what we call as categorical data, है ना? तो इस स्पेसिफिक पार्ट में मैंने क्या बोला कि जब आप डायरेक्टली इस तरीके के डेटा को लेट से मॉडल के पास भेजते हो, तो मॉडल समझ नहीं पाता इस कैटेगरिकल डेटा को। क्योंकि मॉडल क्या समझ पाता है? मॉडल अंडरस्टैंड्स ओनली न्यूमेरिक डेटा। क्योंकि मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, उसको नंबर की भाषा समझ में आती है, मशीन्स को हमेशा नंबर समझ में आता है। तो पहली चीज मैंने क्या बोली कि हमें इन कैटेगरिकल डेटा को कन्वर्ट करना होता है न्यूमेरिक डेटा में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज एनकोडिंग। तो उसमें आप ये बोल रहे हो कि जहां जहां पे मेल है उसको 0 कर दो, फॉर एग्जाम्पल। जहां जहां पे फीमेल है उसको 1 कर दो। तो जहां जहां पे मेल होगा वो 0 कर देगा, जहां जहां पे फीमेल होगा वो 1 कर देगा। दिस इज वन थिंग। सेकेंड मैंने क्या बोला, अब आपके पास रो डेटा है, आपने डेटा को कलेक्ट किया मे बी किसी डीबी से। ये तो फर्स्ट चीज मैंने आपको बताई कि ये काम करना पड़ेगा अपने को अगर कैटेगरिकल डेटा है तो। सेकंड मैंने बोला कि देयर आर हाई चांसेस कि डेटा के अंदर क्या हो, मिसिंग वैल्यूज हो। जैसे मान लो डेटा है और डेटा के अंदर आपके पास एक कॉलम था सैलरी करके। उस स्पेसिफिक कॉलम में बहुत सारी सैलरीज अवेलेबल थी, फॉर एग्जाम्पल 45,000, 70,000, 75,000। बट बीच में कुछ एंट्रीज मिसिंग थी, कुछ कस्टमर्स के लिए, कुछ एम्प्लॉयज के लिए। उसके बाद वी हैव 85,000, 72,000 एंड सो। तो मेजरली द मेन फोकस ओवर हियर इज कि अब इसको हम डायरेक्टली तो मॉडल के पास नहीं भेज सकते क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। और जैसा कि मैंने बोला कि मशीन लर्निंग के अंदर डेटा ही सब कुछ है। अगर आप डेटा को एक क्वालिटी वे में नहीं भेजोगे तो आपके रिजल्ट्स भी बेकार आएंगे। सो ओवर हियर वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज डेटा इंप्यूटेशन। डेटा इंप्यूटेशन का मतलब होता है कि यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस ऑल दीज मिसिंग वैल्यूज विद समथिंग मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल क्या होगा? मे बी यू कैन ट्राई टू टेक अ एवरेज ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज, और जो भी आपका एवरेज आ रहा है आप उससे फिल कर रहे हो। तो यू आर सेइंग दैट लेट्स से द एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 65,000, तो आई विल ट्राई टू रिप्लेस ऑल दीज मिसिंग वैल्यूज विद 65,000। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। इसके अलावा और तरीके भी हो सकते हैं। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि हो सकता है कि आपके डेटा में आउटलायर्स अवेलेबल हो। आउटलायर्स क्या होते हैं? दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इन्हें भी हैंडल करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो सैलरी का ही एग्जांपल हम लेते हैं, बट सैलरी के अंदर आपके पास अभी तक जितनी वैल्यूज थी वो इस तरीके से थी, 60,000 हो गई, 65,000 हो गई, 50,000 हो गई, है ना? यू हैव द वैल्यूज इन द रेंज फ्रॉम 50,000 टू लेट्स से 90,000। बट फिर आपके पास एक और सैलरी आई 90,000, जिसने बोला कि माई सैलरी इज लेट्स से 10 लाख। तो ये क्या हो गया? दिस इज समथिंग विच इज एन एक्सट्रीम वैल्यू एंड दिस कुड बी एन एरर, जिसको हम यहाँ पे आउटलायर बोल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लॉट जो है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमें इन आउटलायर्स को अगर कम परसेंटेज में है तो रिमूव करना होता है, और अगर ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है तो रिमूव करने की बजाय, क्योंकि रिमूव करेंगे तो पूरा की पूरा डेटा लॉस होगा, अगेन इन्हें भी इंप्यूट करना होता है किसी वैलिड वैल्यू से।
इसके अलावा मैंने क्या बताया, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप अपने फीचर्स पे काम करोगे। आप देखोगे कि कोई फीचर ऐसा तो नहीं है जो कि इतना मीनिंगफुल नहीं है, तो आप उसे रिमूव कर दोगे। या फिर कोई फीचर ऐसा तो नहीं है जिससे कि मैं एक नया फीचर क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वन फीचर एज फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, अनदर फीचर एज लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय। यू विल बी लाइक कि मेरे को ना इन दोनों फीचर्स की जरूरत है नहीं। मैं क्या करती हूँ, आई विल क्रिएट समथिंग न्यू फीचर with the name of, let's say, full name, which is nothing but it is the combination of first name and last name. तो आपने क्या किया, दिस इज कॉल्ड एज फीचर इंजीनियरिंग। आपने एक नया फीचर क्रिएट किया और आपने पुराने फीचर्स को ड्रॉप कर दिया। तो when you try to create some new feature based on the previous features that you will be having, that is something which we call as feature engineering. तो ये सब काम हम यूजुअली करते हैं when we do a data cleaning और data pre-processing part. इसके अलावा स्केलिंग के बारे में मैंने बताया। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? स्केलिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज है तो उन वैल्यूज को एक स्पेसिफिक रेंज में लेके आना। सो स्केलिंग मींस यू वांट टू कन्वर्ट, or what we can say, transform the entire set of features within one specific range, within one specific range. इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलिंग। जैसे कि मान लो आप -1 से +1 में लेके आते हो या 0 से 1 के बीच में लेके आते हो। ये क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, अगेन आपके पास एक फीचर है सैलरी और एक फीचर है मान लो एज। एक फीचर है सैलरी और एक है एज। सो ऑब्वियसली दोनों के बीच में बहुत गैप है। सैलरी तो करोड़ों में भी हो सकती है और एज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 100। तो अगर आप मॉडल को डायरेक्टली इस तरीके से डेटा प्रोवाइड करोगे तो मॉडल माइट बी बायस्ड टुवर्ड्स हाई स्केल वैल्यूज। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि हमारा मॉडल, हमारा मशीन तो मैथमेटिकल भाषा समझता है। तो वो क्या सोचेगा कि क्योंकि सैलरी की वैल्यू ज्यादा है तो सैलरी फीचर में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरेबल टू एज। जबकि ऐसा नहीं है। मुझे तो एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना है जो कि अनबायस्ड हो फॉर ऑल द कॉलम्स दैट वी विल बी हैविंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग ओनली we will be able to scale our entire numeric features into one specific range. That's the whole point. Is this clear to everyone? All good? समझ में आया? डन? चले आगे। Any other doubt anyone is having before we will proceed further? तो you can consider कि जो अल्टीमेट कोर पर्पस है ना इस स्पेसिफिक स्टेप का, दिस इज टू जनरेट हाई क्वालिटी डेटा। दैट इज द मेन, आई वुड से, पर्पस ऑफ दिस स्टेप ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके जो आने वाले स्टेप्स हैं, या फिर मैं बोलूं कि आने वाला जो आपका मॉडल बनेगा, दैट इज वंडरफुल, सुपर। लेकिन अगर आपने इस स्पेसिफिक स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम किया तो आने वाले सभी स्टेप्स अगर आप जितना भी बढ़िया कर लो, आपके रिजल्ट्स खराब ही आएंगे। दैट्स द होल पॉइंट। समझ में आ रहा है? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े टू द नेक्स्ट स्टेज। The next stage is about
मॉडल बिल्डिंग। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, बिकॉज इन मशीन लर्निंग वी हैव सो मेनी मॉडल्स, सो मेनी एल्गोरिथम्स, based on what exact type of I would say problem we are solving over here, we will try to apply that specific kind of a model over here. तो हम किस तरीके की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उस तरीके का डेटा सेट हमें यहाँ पे यूज करना होता है. सो ओवर हियर it could be linear regression, it could be decision tree, it could be random forest, it could be XGBoost and so on. So that's the whole point. आप मॉडल क्रिएट करते हो, एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हो, एंड फाइनली यू विल ट्राई टू इवेल्युएट दैट मॉडल. यू विल डू अ मॉडल इवेल्युएशन जहां पे यू ट्राई टू वर्क ऑन गेटिंग एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन एंड सो ऑन. फाइनली अगर आप सेटिस्फाइड होते हो अपने रिजल्ट से, जो आपके पास रिजल्ट्स आए इवेल्युएशन स्टेज में, देन यू कैन गो अहेड एंड डू द डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट मीन्स कि जो आपकी फाइल्स है, ट्रेन्ड फाइल्स हैं, जो आपके पास ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स आए हैं, यू विल ट्राई टू डिप्लॉय दैट. मेन पर्पस ये होता है कि किस तरीके से किसी तरीके से हम एक ऐसा इंटरफेस डिजाइन कर सके कि इफ देर इज एनीवन हु इज नॉट फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, वो भी अगर आपकी वेबसाइट पे जाके कुछ वैल्यूज को हिट करता है और क्लिक करता है प्रिडिक्शन पे, तो द पर्सन विल बी एबल टू गेट द प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन वट एवर यू हैव डिजाइन. And finally, after deployment, we can go for the monitoring stage. In the monitoring part, what we will do is we will try to see कि further अगर मान लो हमारा डेटा ऐड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, दोबारा से रिट्रेन करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है. That is the whole thing that we do once our model is deployed at the end of the day. So that is the overall life cycle of any machine learning project. Is this something which is effectively clear to everyone? So basically यहां पे जब हम बात करते हैं मॉडल बिल्डिंग, उसके बाद हमारा मेन पर्पस होता है टू प्रिडिक्ट द मॉडल, है ना. वी विल चेक द मॉडल प्रिडिक्शंस, और उन प्रिडिक्शंस के बेसिस पे ऑब्वियसली वैल्यूज इवेल्युएट होती हैं कि वो प्रिडिक्शंस कितनी डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यूज दैट वी विल बी हैविंग. ओवर हियर एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम एमएल मॉडल्स के बारे में बात करते हैं या फिर एमएल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो एमएल मॉडल्स डज द प्रिडिक्शन. तो उनका मेन जॉब जो होता है ना, वो प्रिडिक्ट करने का होता है. द मेन गोल इज टू प्रिडिक्ट समथिंग, एंड दिस इज हाउ द प्रिडिक्शन एक्चुअली हैपेंस. ओवर हियर इट कुड बी अ क्लासिफिकेशन टास्क, जहां पे हो सकता है कि आपको क्लासेस को प्रिडिक्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल वेदर द पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट. या फिर हो सकता है कि आपको किसी रिग्रेशन और कॉन्टिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना हो. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू जस्ट लेट मी नो व्हाट कुड बी द पॉसिबल हाउस प्राइस ऑफ अ गिवन बैंगलोर फ्लैट. सो दैट कुड बी अ पॉसिबल एग्जाम्पल, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो एमएल प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी के सभी बाय डिजाइन प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द test data, on the future data, on the unseen data, based on whatever training we have done on the historical data. तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, उस पर हम ट्रेनिंग करते हैं इन द होप कि अगर मेरा मॉडल स्मार्ट होगा तो वो फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स को लेके प्रिडिक्शन करके देगा. दैट्स द एंड गोल व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मशीन लर्निंग. Tell me, is this effectively clear to everyone? What exactly we are doing over here under this ML umbrella, and how it is effectively different from सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अम्ब्रेला. क्या मैं दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं, इन दोनों के लाइफ साइकिल को कंपेयर कर पा रहे हैं? क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कैसे ये दोनों डिफरेंट है? परफेक्ट. बट अभी के टाइम पे वी आर इन 2026. What is going on in the market is
generative AI. So in the next part of our discussion, we will talk about what exactly this Gen AI is doing. And now what we have is a third umbrella, which is Gen AI. What is the life cycle of it? And how this life cycle is completely different from what we have learned in machine learning. Why completely different? I have mentioned this term because over here, the main shift happened. What is that main shift? The shift was that till so far in our journey, we were focusing on doing the predictions in machine learning. Gen AI says that I will create something, creates some data. This data could be an textual data, numeric data, images, audio, video, anything. You just name it. किस तरीके का डेटा आपको चाहिए एज ए रिस्पॉन्स, इट विल ट्राई टू क्रिएट इट. और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं. तो जेन एआई का पर्पस प्रिडिक्शन करने का नहीं है. जेन एआई डिजाइन बाय डिजाइन इसलिए किया गया. जेन एआई की फुल फॉर्म है जनरेटिव एआई. जनरेटिव मतलब कुछ जनरेट करके देगा ये हमें. तो किसी भी प्रकार का आपको डेटा चाहिए, इट विल बी helpful for us to generate that specific kind of a data. So now the industry is somehow entering into this specific shift from prediction to generating something. So the ML system by design help us to predict something. Gen AI systems by design help us to create something. Whatever be the use cases which you are observing right now in the market, whether it's about you must have seen co-pilots. I hope everybody have seen that, which are helping us to do the code generation part. It's an application of Gen AI. You have seen chatbots, which will be able to answer just like the way human answers. Again, an example of Gen AI. We have a content creation systems, for example, ChatGPT, where they can help you to draft the LinkedIn post, the emails, everything. We have image generation tools. For example, DALI. So you just have to write an effective prompt, and based on that specific prompt, image will be generated. We have the AI assistants, which will be effectively helpful for us to do a lot of our tasks, maybe schedule our meetings as well. We have the tools for document summarization. They will be able to understand the entire document and summarize for us. Everything is actually a core application of Gen AI. So OpenAI, Google, Anthropic, these are the few companies which are heavily investing right now in this market, in this ecosystem. And that's why you will observe that right now, be it any domain, people are expecting you to know about this Gen AI. Whether you're applying for machine learning engineer, you're applying for data analyst position, you're applying for DE specific roles, data engineering specific positions, you're applying for data science specific positions, everybody is expecting you to know about this Gen AI part. So we will learn about that now in our next stage of our discussion. But before moving ahead, can I get a quick confirmation? Is this something which is clear to everyone? All good till so far? Any questions, any doubts? So now we are entering into a very interesting space. And I hope that till so far, you have enjoyed the discussion as well. And you have learned a lot about what was happening previously in the software development, what is happening in machine learning, and now what will happen in Gen AI. Right, everyone?
Okay. First of all, whenever we are working on these kind of use cases, our very first question which we have to ask from ourselves in the projects is the clear problem understanding. The clear problem understanding. It means that over here, we should ask from ourselves that in this specific use case, do we need generation? Do we need to generate something? Or the main goal is to do the prediction? That's the question you have to ask from yourself whenever you are working in these projects. This is a very, very important decision because this decision will change the pipeline, will change the life cycle, the way you will work on. अगर देखो आप बोलते हो कि मेरा जो फोकस है वो जनरेशन पार्ट पे है मेरे प्रोजेक्ट में, तो ऑब्वियसली इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आपको वहां पर जनरेटिव एआई स्पेस में जाना है, जेन एआई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है. ऑन द अदर हैंड अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे मेरा फोकस जो है वो प्रिडिक्शन पे इसका मतलब मे बी आपको एम एल डी एल के अराउंड काम करना है ना. तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है एंड उस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन एंड गोल क्या है, राइट. उसके बाद वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन यू विल थिंक अबाउट व्हाट इज डेटा एंड नॉलेज सोर्सेस फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरा जो एंड गोल है वो तो जनरेशन पार्ट पे है ना. यू डिसाइडेड कि जनरेशन करना है मुझे. अब जनरेशन करने के लिए, डेटा को जनरेट करने के लिए वी हैव सो मेनी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स. प्री ट्रेन्ड मॉडल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉडल्स जो कि ऑलरेडी बहुत ह्यूज चंक ऑफ डेटा पे ट्रेन हो चुके हैं. तो आपको ये देखना है कि आपका स्पेसिफिक डेटा या नॉलेज सोर्स क्या है. आपको लेट से क्या डिजाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर जीपीटी तो डिजाइन नहीं करना जो कि स्पेसिफिकली डॉक्टर स्पेसिफिक डेटा या पेशेंट स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेंड हो. या फिर आपको फिजिक्स के अराउंड तो कुछ डिजाइन नहीं करना. या फिर आपको मैथ्स के अराउंड तो कुछ डिजाइन नहीं करना. या फिर आपको रिसर्च के अराउंड तो कुछ डिजाइन नहीं करना. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जैक्टली इज योर नॉलेज सोर्स, आपका डेटा उस हिसाब से वेरी करेगा. एंड दैट डेटा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर डेटाबेसेस. कितने लोगों को पता है वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में? इट कुड बी एनी एपीआईज एज वेल. वेक्टर डीबी को कौन समझता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट वेक्टर डेटाबेसेस? वेक्टर्स क्या होते हैं? एनीवन नोज अबाउट वेक्टर्स? फिजिक्स में तो पढ़ा होगा कभी ना कभी, 11th 12th में. वेक्टर्स क्या होते हैं? पढ़ा है फिजिक्स में. जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है ना. यही पढ़ते थे हम फिजिक्स में. अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मॉडल्स जब हम बात करते हैं मशीन के अंदर, वो कुछ भी एज सच टेक्सचुअल नहीं समझते. वो कुछ भी ऐसा, आप अगर उसको टेक्सचुअल डेटा दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी टेक्सचुअल डेटा है उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाए किस फॉर्म में? न्यूमेरिक फॉर्म में. और इस टेक्निक को, टू कन्वर्ट द टेक्सचुअल डेटा टू न्यूमेरिकल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज एम्बेडिंग्स. ठीक है. तो बेसिकली आप एक टेक्सचुअल डेटा की एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे हो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर, और इसी को हम वेक्टर भी बोलते हैं. तो इसको हम वेक्टर एम्बेडिंग्स भी बोल सकते हैं. तो हर एक स्पेसिफिक वर्ड का आप न्यूमेरिक फॉर्म जनरेट करने का ट्राई कर रहे हो.
अब उसके बाद उस स्पेसिफिक न्यूमेरिक फॉर्म के डेटा को स्टोर तो कहीं कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। जो आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म आ गया उसी टेक्सचुअल डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करोगे। उस वेक्टर एम्बेडिंग को स्टोर करने के लिए हमारे पास आते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। क्या आते हैं? वेक्टर डेटाबेसेस। जैसे बहुत सारे वेक्टर डीबी है हमारे पास, पीजी वेक्टर है जैसे, इसके अलावा क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर डीबीज हमारे पास अवेलेबल है जो कि इन एम्बेडिंग्स को स्टोर करते हैं। क्या मैं बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है कि आपका जो नॉलेज सोर्स हो वो वेक्टर डीबी भी हो सकता है। अब एक बार आपने अपना डेटा या नॉलेज सोर्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू फाइनलाइज योर फाउंडेशनल मॉडल। आप बोलोगे डेटा को जनरेट करने के लिए मैं कौन सा मॉडल यूज करूं। अब यहां पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मॉडल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीपीटी बहुत फेमस है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि चैट जीपीटी के अंदर यूज होता है। उसका जो लेटेस्ट वर्जन है आप देखोगे अगर कभी भी अपना चैट जीपीटी खोल के, तो वो लेटेस्ट वर्जन वहां पर यूज हो रहा होगा। आपको जीपीटी यूज करना है, आपको जेमिनाई यूज करना है, आपको क्लॉड यूज करना है। क्लॉड इज बाय एंथ्रोपिक, जेमिनाई इज बाय गूगल, आपको लामा यूज करना है। ये सभी अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं जो कि एक एक तरीके से डेटा को जनरेट करने में मेरी हेल्प करते हैं। तो आज के टाइम पे कोई भी ट्रेनिंग स्क्रैच से नहीं होती। अगर आपका यूज केस अलग भी है तो भी आप इन स्पेसिफिक मॉडल्स को सबसे पहले उठाओगे और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट अपने यूज केस के लिए इसे सॉल्व करोगे। इसके एडवांटेजेस ये है कि आपको सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा कोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। प्री ट्रेन मॉडल, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑल दीज आर द प्री ट्रेन मॉडल्स। क्या बोलेंगे इसको? दीज आर द प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, मतलब कि ये ऐसे मॉडल्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेन हो चुके हैं। इट्स जस्ट दैट ऑन टॉप ऑफ इट मैं फाइन ट्यूनिंग करूंगी, मतलब कि मैं अपने डेटा पे काम करने के लिए इसको बताऊंगी कि मेरा देखो मेरा डेटा ये है, इसका इनपुट ये है, मुझे आउटपुट इस तरीके से चाहिए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं समथिंग कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो जिन जिन एआई के सभी जो कोड होते हैं उसमें आप देखोगे कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, जैसे कि फ्यू शॉट, या फिर स्टार्ट करते हैं हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से। फिर हमारे पास आती है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, मतलब कि यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब फॉर जेन एआई पार्ट। उसमें आपको दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मैंने डिस्कस कर रखी है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग होती है। तो बेसिकली हमें एक तरीके से ये मान लो कि एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। और उस सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं, उस सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि रोल क्या है, टास्क क्या परफॉर्म करना है, और किस तरीके की प्रॉम्प्टिंग आपको चाहिए। अगर तो आप उसके अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर एक इनपुट दे रहे हो, एक आउटपुट दे रहे हो, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं कर रहे, डायरेक्टली आपको एक आउटपुट चाहिए, उसे हम बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर आप मल्टीपल चेन्स में अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका मॉडल सबसे पहले उसको एनालाइज करे, फिर उसको रीथिंक करे, इवेल्युएट करे, फिर जाके आपको रिजल्ट दे, उसे हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। तो बेसिकली देखा क्या गया, डिफरेंस कहां आया अगर आप समझने की कोशिश करो तो। एमएल सिस्टम ने बोला कि अगर आप मुझे डेटा दोगे, या फिर मैं इन जनरल बोलूं कि डीएल सिस्टम को भी मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। अब डीएल क्या है ना, डीएल एक तरीके से एमएल की ही सब कैटेगरी है। यू कैन से कि अगर एमएल एक बड़ा स्पेस है, अगर ये एमएल है आउटर स्पेस में, लेट मी राइट अ टेक्सचुअल बॉक्स ओवर हियर, अगर ये एमएल है तो डीएल जो है यू कैन कंसीडर इट एज अ लोअर सबसेट ऑफ दैट। मेन डिफरेंस ये है कि डीएल के अंदर हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटा लेके चलते हैं, जैसे कि इमेज बेस्ड डेटा हो गया। एमएल के अंदर हम न्यूमेरिक डेटा को लेके चलते हैं। बट बीट एनी केस,
यहां पर कोड डिजाइन ये था कि देखो, अगर आप मान लो डायबिटीज वर्सेस नॉन डायबिटीज कर रहे हो एक यूज केस के अंदर जिसमें आपने प्रिडिक्ट किया, और अगर आप मान लो एक कैंसर स्पेसिफिक पेशेंट का डेटा वहां पे फीड कर दोगे, तो मेरे मॉडल को नहीं पता, क्योंकि मेरा मॉडल तो उस पर ट्रेन ही नहीं हुआ। मेरा मॉडल तो सिर्फ डायबिटिक वर्सेस नॉन डायबिटिक पे ट्रेन हुआ है, तो वो नहीं बता सकता कि इस स्पेसिफिक पेशेंट के रिकॉर्ड में कैंसर सेल्स अवेलेबल है या नहीं। ऑन द अदर हैंड जेनेआई ने बोला कि अगर आप मुझे कोई ऐसा डेटा भी दोगे जो कि ट्रेन नहीं हुआ था, मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सेस है प्री ट्रेन मॉडल्स का, मतलब कि इसके पास ऑलरेडी एक सुपर नॉलेज अवेलेबल है, वो मेरे ट्रेनिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हो? तो इसके पास एक सुपर नॉलेज है, उसके पास सब चीजों का ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, अपने दिमाग में उसने स्टोर कर रखा है। आप कोई भी मॉडल यूज कर लो, ऑन टॉप ऑफ इट आप जस्ट अपना डेटा अपने तरीके से प्रोवाइड करके दे रहे हो उसे। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है? इज दिस समथिंग क्लियर टू एवरीवन? तो लेट्स अज्यूम अगर आपने एमएल या डीएल स्पेसिफिक सिस्टम में एक इमेज प्रोवाइड करी, लेट्स से वो इमेज थी एक जेब्रा की। अब जेब्रा पे आपने कभी भी अपने मॉडल को ट्रेन किया ही नहीं। लेट्स से आपने एक डीएल सिस्टम बनाया, डीएल का मॉडल बनाया, पर उस मॉडल में आपने बेसिकली कभी भी जेब्रा दिखाया ही नहीं उसको कि जेब्रा क्या होता है। क्या आपका मॉडल, डीएल मॉडल, जेब्रा पकड़ लेगा कि ये इमेज जेब्रा से बिलोंग करती है? बताओ हाँ के ना। क्या मेरा मॉडल, लेट्स अज्यूम कि मैंने इस मॉडल को ट्रेन किस पे किया था, लेट्स अज्यूम मैंने ट्रेन किया था विद रिस्पेक्ट टू कैट वर्सेस डॉग। ठीक है, तो मेरे मॉडल ने बोला, मैंने बोला कि बताओ कि ये कैट है कि डॉग है। मैंने एक मॉडल ट्रेन किया था, अब मैंने उसे इमेज दी जेब्रा की, तो क्या मेरा मॉडल उसको जेब्रा पकड़ेगा या कैट और डॉग में ही घूमता रहेगा? तो मेरा मॉडल तो डीएल के अंदर कैट और डॉग में ही घूमता रहेगा, क्योंकि मेरे मॉडल के लिए जो मैंने डेटा प्रोवाइड किया है वही उसका नॉलेज है। उसी से वो पैटर्न्स को लेगा, उसी से वो डिटेक्ट करेगा कि एक्चुअली में ये क्या है। उसके पास और कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। जेनेआई में हमने क्या किया, हमने प्री ट्रेन मॉडल्स को यूज किया। प्री ट्रेन मॉडल्स का मतलब है कि उसके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान भरा हुआ है जो कि नेट पे अवेलेबल है। उसके ऑन टॉप ऑफ इट हम क्या कर रहे हैं, हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने डेटा को फीड कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अगर आप यही इमेज ऑलरेडी अगर आपने यहां पे दी जेब्रा की, तो क्या ये प्री ट्रेन मॉडल मुझे मुझे सही बता देगा कि ये जेब्रा है? क्या ये प्री ट्रेन मॉडल मुझे जेब्रा बता देगा? आंसर क्या आएगा? बिल्कुल बता देगा, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी ज्ञान है। तो प्री ट्रेन मॉडल जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन्ड है, तो वो हमेशा हमें एक करेक्ट आउटपुट देगा। क्या हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन? कहां पे हम डिफरेंस ले पा रहे हैं बिटवीन द ट्रेडिशनल सिस्टम वर्सेस द जेनेआई सिस्टम? अब आपने बोला कि सारी बात ठीक है, समझ में आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी समझ में आ गया कि उस हिसाब से वो मुझे आंसर देगा। बट लेट सपोज कि मुझे तो ना डोमेन स्पेशलाइजेशन सिस्टम क्रिएट करना है। एक और प्रॉब्लम आई ना, जब जेनेआई क्रिएट हुआ तो एक और प्रॉब्लम आई। लोगों ने बोला कि मुझे तो डोमेन स्पेशलाइजेशन सिस्टम बिल्ड करना है। जैसे कि मान लो लीगल एआई मैटर्स को सॉल्व करे, तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा इंटरफेस हो जिसके पास सभी अभी तक के जितने भी लीगल स्पेसिफिक रूल्स है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। या फिर मुझे एक हेल्थ केयर एआई के बारे में सिस्टम क्रिएट करना है जिसको अभी तक जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे उसे डायग्नोस करना है, पैटर्न क्या है। या फिर मुझे फाइनेंस के बारे में कोई समझा दे, मुझे तो फाइनेंस असिस्टेंट्स को क्रिएट करना है। या फिर मुझे कोई डेटा साइंस पढ़ा दे, मुझे तो डेटा साइंस असिस्टेंट जो कि मे बी रेगुलरली चेक करे कि क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं मार्केट में, क्या क्या रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं,
और मुझे उसके बारे में अपडेट देता रहे। तो जहां पे भी डोमेन स्पेशलाइजेशन आया, वहां पे हमें करना पड़ा क्या? फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग ने क्या किया? फाइन ट्यूनिंग ने बोला कि जो भी आपको स्पेशलाइज्ड बनाना है, मुझे उस तरीके के डेटा दे दो। मैं आपको, ये तो रहेगा ही सुपर नॉलेज, बट सुपर नॉलेज स्पेशलाइज हो जाएगी जो आप डोमेन प्रोवाइड करोगे उसके बेसिस पे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया? वी केम इनटू दिस कॉल्ड एज फाइन ट्यूनिंग। क्या मैं ये बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ एन ऑप्शनल स्टेप। तो जहां पे आपको चाहिए होगा आप इसे यूज करोगे, जहां पे नहीं चाहिए होगा आप नहीं करोगे। यू विल जस्ट राइट अ इफेक्टिव प्रॉम्प्ट एंड देन यू विल ट्राई टू राइट द क्वेश्चंस, योर मॉडल विल बी एबल टू गिव द आंसर। लेकिन अगर आपको कुछ भी अपने तरीके से करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, डोमेन स्पेसिफिक करना है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एज फाइन ट्यूनिंग। क्या मेरी बात समझ में आती है? इज दिस समथिंग क्लियर टू एवरीवन? और फाइनली जब आपने फाइन ट्यूनिंग कर लिया, उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या आपका जो मॉडल आपने डिजाइन किया है, जो आपने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, वो एक्यूरेट है या नहीं। सो यू विल ट्राई टू चेक द एक्यूरेसी, कि कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव करके दे रहा है। यू विल चेक कि हेल्यूसिनेशन तो नहीं है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? ये बहुत हुआ था जब इनिशियली मॉडल्स डिजाइन किए गए थे जनरेटिव बेस्ड। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया। तो उस टाइम पे अगर आप लोग को याद हो, मतलब अब तो काफी मेच्योर हो गया क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंटरनली ट्रेनिंग कर रही है और उन्हें रीट्रेन कर करके काफी मेच्योर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स को। बट इनिशियली जब डिजाइन किया गया था, तो हो क्या रहा था कि योर मॉडल वॉज गिविंग द आंसर बट इट वॉज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ भी क्वेश्चन लिख रहे थे, तो वो आपको, उसको पता ना होते हुए भी वो आपको आंसर दे रहा था, बट गलत तरीके से। काइंड ऑफ यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंट था वो। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको चेक करना होता है कि क्या आपका मॉडल हेल्यूसिनेट तो नहीं कर रहा, मतलब कि वो आंसर तो दे रहा है और बहुत कॉन्फिडेंटली दे रहा है, बट हो सकता है कि वो आंसर बिल्कुल गलत दे रहा हो, राइट। उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है वो कितना रेलेवेंट है आज के टाइम पे। अगर रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स से डेटा साइंस इंडस्ट्री में यू विल ऑब्जर्व कि कितनी चीजें अपग्रेड हो गई हैं, है ना। अब हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो 4 साल पहले की लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है, जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यू हैव टू चेक द रेलेवेंस ऑफ योर रिस्पॉन्स एज वेल। और अगर आप फाइनली इन सब चीजों को समझ चुके और आपको लगता है कि आपका मॉडल सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, देन यू विल गो फॉर द डिप्लॉयमेंट फेज इन जेनएआई। डिप्लॉयमेंट में आप चेक करते हो कि लेटेंसी कैसी है। लेटेंसी का मतलब क्या है? कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने प्लेटफॉर्म से, जो भी आपने डिजाइन किया है, क्या वो फ्रीक्वेंटली रेस्पॉन्स दे रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ रहा है उसको जनरेट करने के लिए। उसके बाद यू विल चेक द टोकन कोस्ट। तो ये सब चीजें जो है, फॉर एग्जाम्पल आप कितना इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, कितने स्पेसिफिक आउटपुट आपका कितना लंबा चौड़ा आ रहा है, उसके पीछे टोकन का कोस्ट लगता है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो हम स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं या हम खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा टोकन कंज्यूम नहीं करवा सकते, राइट। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिक्योरिटी, कि जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वो सिक्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पे। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि कैसे ये तीनों पाइपलाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमएल और जेनेआई, आपस में कनेक्टेड भी हैं बट अलग अलग भी हैं? क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर? हाँ जी, बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? एनएलपी एक्चुअली में जेनेआई के अंडर ही आता है। तो एनएलपी की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो
जब भी आप किसी भी टेक्सचुअल डेटा पे काम करते हो, दैट इज वेयर एनएलपी डोमेन कम्स इनटू पिक्चर. तो जेनएआई के अंदर अगर आप देखो तो यू हैव वर्कड अराउंड विद textual data only majorly. So that is a domain which comes under this NLP part itself. So basically, in a nutshell, if we have to compare these three architectures, SDLC versus ML versus GenAI, तो हम क्या बोलेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स थे उसमें लॉजिक जो था दैट इज मैनुअली कोडेड, है ना. वहां पे मैनुअली कोड लिखा करते थे हर एक चीज का. हमारे पास रूल्स होने जरूरी हुआ करते थे ताकि हम उसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और उसे राइट कर सकें. जैसे ही ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से हम एमएल सिस्टम्स पे पहुंचे तो हमने ये देखा कि लॉजिक या रूल्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास डेटा होना चाहिए. बिकॉज दीज सिस्टम्स लर्न्स द पैटर्न ऑन देयर ओन फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, है ना. हिस्टोरिकल डेटा से उसने पैटर्न समझना खुद से शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारा फोकस रहा प्रिडिक्टिंग वेदर द पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट. अब यहां से जैसे ही हम गए जेनएआई बेस्ड सिस्टम्स में, जेनएआई सिस्टम्स ने क्या किया, इट इज द सिस्टम्स दैट जनरेट्स न्यू कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल यहां पे फोकस रहा टू जनरेट द ईमेल्स, कोड, समरीज एंड सो ऑन. तो यहां पे हमारा मेन काम क्या रहा, जनरेट करने का रहा. एंड दैट्स हाउ ऑल ऑफ दीज थ्री डोमेन्स वेरीज फ्रॉम ईच अदर. समझ में आया? What type of learning methods these LLMs follow? Supervised, unsupervised, reinforcement, or hybrid learning. I mean, they don't usually follow as such one common pattern, but अगर आप इन सब में से कंपेयर करो तो I would say hybrid. It's not completely supervised, it's not completely unsupervised, it's not completely reinforcement as well. Uh, सबसे पहले सेल्फ सुपरविजन होता है. यहां पर क्या होता है, मॉडल्स अपने आप ही अनलेबल्ड इंटरनेट के टेक्सचुअल डेटा को समझने की कोशिश करते हैं और ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो लेबल्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं. यूजुअली यहां पे अगर आप देखो टेक्सचुअल डेटा के अंदर प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काफी ज्यादा रोल रहता है. उसके बाद वाई आई एम सेइंग इट्स अ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि ह्यूमंस यहाँ पे मैन्युअली लेबल नहीं कर रहे. इंस्टेड हम ये बोलेंगे कि टेक्स्ट अपने आप ही सुपरवाइज कर रहा है. तो इट्स नॉट प्योरली सुपरवाइज्ड, नॉट प्योरली सेल्फ सुपरवाइज्ड, सॉरी अनसुपरवाइज्ड. LLMs sort of doing a hybrid learning over here. There is a very interesting concept in LLM जिसको हम पोस्ट ट्रेनिंग में यूज करते हैं. कहाँ पे लिखना चाहिए इसको, मे बी आई राइट इट ओवर हियर, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा ही है तो लेट मी आंसर द स्पेसिफिक पार्ट एज वेल. सो होता क्या है कि एलएलएम्स के अंदर पोस्ट ट्रेनिंग होती है. पोस्ट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि आपका एलएलएम आपको रिस्पॉन्स दे रहा है. इट कुड बी जीपीटी, इट कुड बी जेमिनाई, इट कुड बी क्लोड. तो there are two techniques which we use in the market. First one is called as SFTs
जिसे हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, एसएफटी। इसके अंदर क्या होता है कि प्री ट्रेनिंग के बाद जो कंपनीज है वो ह्यूमन लेवल पे, एक्चुअल ह्यूमन क्रिएट्स इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स पेयर। तो जिस फॉर्म में मैं अभी काम कर रही हूं वहां पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्निक मतलब हम लोग लेके चलते हैं, एसएफटीज जिसे हम बोलते हैं, कि एलएलएम्स ने ट्रेनिंग कर ली, एलएलएम्स ने प्री ट्रेन रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद हम वहां पे उन रिस्पॉन्सेस को इवेल्युएट करते हैं एज अ ह्यूमन रिव्यूअर। एसएफटीज में हम खुद से क्रिएट करते हैं एक इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स पेयर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन आंसर डेटा सेट्स को, या फिर कोडिंग एग्जाम्पल्स को, या फिर जो भी आपको जिस तरीके से मॉडल को डिजाइन करना है, रीजनिंग एग्जाम्पल्स को हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं बोलूंगी अपने मॉडल को कि एक्सप्लेन ग्रेडियंट डिसेंट। एज अ ह्यूमन मैं क्वेश्चन भी लिखूंगी और मैं एक आइडियल आंसर भी लिखूंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरे मॉडल को समझ में आएगा कि अच्छा इसका जो इनपुट है, अगर कोई कोई बंदा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो मुझे इस तरीके से उसको आंसर देना है। इसीलिए इसको बोला गया सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, मतलब कि ह्यूमन पर्सन मैन्युअली आइडियल एक इनपुट आउटपुट आंसर जनरेट करके दे रहा है, ताकि मॉडल उसको लर्न कर सके और समझ सके कि अगर कोई बंदा फ्यूचर में आपसे इस तरीके का इनपुट पूछते है तो आपको इस तरीके का आउटपुट वहां पे देना है। तो दिस इज द स्टेज विच टीचेस इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, फॉर्मेटिंग एंड कॉन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर। इसीलिए जब भी आप देखोगे, जब भी आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आपको रिस्पॉन्स में बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई ह्यूमन बीइंग बैठ के आपको आंसर दे रहा हो। आप पूछते हो कि मुझे लेमन टर्म्स में बताओ, तो लेमन टर्म्स में आपको बताता है। तो ऑब्वियसली इंटरनली उसकी ट्रेनिंग भी इस तरीके से की गई है ना, कि आपको इस तरीके के आंसर वो दे, इतने अच्छे से रिस्पॉन्स करे। सो दैट इज वेयर दिस एसएफटी कम इनटू पिक्चर। तो यहाँ पे इस एसएफटी की हेल्प से होता क्या है कि योर एलएलएम will be able to learn. So we are trying to teach over there effective formatting, कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, कॉन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कॉन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर, एंड सेफ्टी अलाइनमेंट, कि किस तरीके के वर्ड्स को यूज करना है, किस तरीके की भाषा को यूज करना है। इसके अलावा पोस्ट ट्रेनिंग के अंदर एक और काम भी होता है। तो ये तो हुआ एक एक काम जो मैंने आपको बताया, इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ, ठीक है। एसएफटी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा पोस्ट ट्रेनिंग में एक और काम भी होता है जिसे हम बोलते हैं आरएलएचएफ। जिसे हम बोलते हैं समथिंग कॉल्ड एज आरएलएचएफ, मतलब कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो कि पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान यूज होती है, आरएलएचएफ। और अगेन फॉर्म्स इन्हीं दो टेक्निक्स को यूज करके रेस्पॉन्सेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे ह्यूमन बीइंग अगेन बैठता है एंड ह्यूमन रैंक द आउटपुट, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज है मॉडल के, रिस्पॉन्स ए एंड रिस्पॉन्स बी। तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, वो रैंक करेगा कि रिस्पॉन्स ए बेटर था या रिस्पॉन्स बी बेटर था, और किस एस्पेक्ट में ह्यूमन बीइंग बता रहा है कि ए बेटर है या बी बेटर है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक रिवॉर्ड मॉडल जनरेट किया जाता है। सो somehow we are seeing that a reward model is being trained over here, and by the end of the day LLM optimizes towards the preferred response। तो जो भी ह्यूमन बीइंग ने बोला कि हाँ ये प्रेफरेबल रिस्पॉन्स है, एलएलएम कोशिश करता है कि उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करे।
ऐसा कुछ आप लोग देखते होगे चैट जीपीटी पे, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपके पास कई बार दो रिस्पॉन्स आते हैं, और फिर वो आपसे बैक एंड पे पूछता है कि आपको कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा लगा, आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स और दैट रिस्पॉन्स। आप लोग कई बार देखते होगे, मतलब हर बार नहीं होता, बट कई बार अगर आप बहुत यूज कर रहे हो तो आपको मिलता होगा। तो बैकएंड पे कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव ट्रेनिंग चल रही है जिसे हम बोलेंगे आरएलएचएफ। तो आप अगर बोलते हो कि रिस्पॉन्स बी बेटर है, तो अगली बार एलएलएम क्या करेगा, इट विल इफेक्टिवली ट्राई टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स लाइक रिस्पॉन्स बी। सो ओवर हियर द लर्निंग इज हैपनिंग फ्रॉम द एआई फीडबैक। तो यहां पे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, मॉडल हर एक आइट्रेशन में इंप्रूव हो रहा है, स्केलेबिलिटी बढ़ रही है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन एलएलएम। सो दो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स होते हैं यहाँ पे, एसएफटी एंड आरएलएचएफ, एंड दिस इज समथिंग व्हिच एवरी कंपनी ऑलमोस्ट डज इन एन एलएलएम पाइपलाइन। समझ में आया? क्लियर है? परफेक्ट। सो अगर कोई आपको इंडस्ट्री में बोलता है कि यू नो एलएलएम एलएलएम्स आर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सुपरवाइज नहीं है। सुपरवाइज का मतलब होता है कि आपके पास में लेबल्स अवेलेबल है ना? ऐसा नहीं है, हमारे पास लेबल्स अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। गलत भी नहीं बोलेंगे, सही भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई आपको बोलता है कि एलएलएम्स आर कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड, मतलब कि अनलेबल्ड है सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। अगेन आई विल से दैट दिस इज आल्सो अ रॉन्ग, और वी कैन से इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। बट अगर आपको कोई बोलता है कि मॉडर्न एलएलएम्स आर यूजिंग अ hybrid training pipeline which is dominated by self supervised pre training। सेल्फ सुपरवाइज प्री ट्रेनिंग का मतलब समझ में आया है सभी को? इसका मतलब क्या कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप से क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है अपने अपनी चीजों को। जैसे कि अगर आपने एक सेंटेंस दिया, लेट्स से आई लव टू वॉच मोटिवेशनल। अब मेरा मॉडल क्या करेगा, एलएलएम क्या करेगा, आई एम सेइंग इट इज डूइंग समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब सिंपल सा ये है, लेट्स अज्यूम कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बट मैं आपको एक सिंपल सी सेंटेंस से समझा रही हूं कि ये जो होगा, ये मेरे मॉडल के लिए एक आउटपुट होगा विच इज वाई, और ये मेरे मॉडल के लिए क्या होंगे, इनपुट फीचर्स होंगे विच इज x1, x2, x3, x4, x5। मेरा मॉडल इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो यहां पे हमारा जो मेन फोकस रहता है इवेल्युएट करने का होता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आउट ऑफ द बिलियंस ऑफ वर्ड्स व्हिच आर पॉसिबल ओवर हियर, इट विल कंपेयर कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एंड लेट्स अज्यूम y इक्वल्स टू मूवीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो चेक करेगा कि अच्छा यहां पे मूवीज आएगा। तो इस तरीके से फॉर द एंटायर paragraph, for the entire set of documents, it will try to predict the next word based on the input features that we will be having, है ना? Based on the input features that we will be having. And that is how the self-supervised learning will happen. So what I'm saying is, over here,
There will be a self-supervised pre-training because we will be having a very huge chunk of data, followed by, अब एक बार अगर प्री ट्रेनिंग हो गई, आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, लास्ट में होती है पोस्ट ट्रेनिंग, where we will be using supervised fine tuning, SFTs, and reinforcement learning based alignment. That's the whole crux of today's session. क्या मैं ये बातें समझ में आ रही हैं? Is this conclusion is effectively clear to everyone? तो LLM एक ऐसा मॉडल है जहां पे प्री ट्रेनिंग होती है और जहां पे पोस्ट ट्रेनिंग भी होती है, मतलब कि रिस्पॉन्स आने के बाद भी ट्रेनिंग किया जाता है, followed by post training using these two effective models. Not models, techniques, I would say. All good? Is this something which is effectively clear to everyone over here? समझ में आया? मजा आया? क्या अब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे फ्यूचर में कि यहाँ पे मशीन लर्निंग लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे जेन AI बेस्ड एप्लीकेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? Will we able to identify that? Very good. Very good. So this is the main objective. Now the final concluding part of our session, and after that we will conclude our discussion. Today I have observed that many people are heavily confused to understand that how can we translate any business problem into a data specific problem. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. ठीक है, आप लोग समझ जाओगे अब कि ये ML स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या जेनेआई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बट उससे भी कहीं गुना पहले आपको अपने माइंड में ये स्किल सेट लेके चलना है कि अगर कोई भी क्लाइंट मेरे को कोई बिजनेस प्रॉब्लम बोलता है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं उस बिजनेस प्रॉब्लम को डेटा स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करूं. बेसिकली, हाउ कैन आई कनेक्ट द बिजनेस स्पेसिफिक गोल्स टू डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस. जैसे जैसे अगर मैं आपसे एक बिजनेस क्वेश्चन पूछूं कि कैन वी रिड्यूस चर्न. चर्न का मतलब क्या होता है? चर्न का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म इन बिजनेसेस. चर्न मीनिंग टू मूव in business, I can say. So you can see the rate at which customers stop doing business with you. तो लेट्स से कि अगर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं और या फिर मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरी सर्विस को लीव करके जा रहे हैं, तो वो हो गया कि चर्न ज्यादा है. तो क्या हमें चर्न को रिड्यूस करना चाहिए? या फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ मेनी यूनिट्स विल वी सेल, or I will ask from you that can we automate the content creation? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं चर्न के बारे में पूछ रही हूं तो मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट चर्न क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. मतलब कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे मैं इसको कन्वर्ट कर सकूं या तो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में या जेन AI स्पेसिफिक प्रॉब्लम में. तो क्या हम इसको समझ पा रहे हैं? बेसिकली यहां पे जब मैं आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछ रही हूं, समहाउ मैं 3 चीजों के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूं. कैन वी रिड्यूस चर्न, इसका मतलब आप इसे कन्वर्ट करोगे टू अ प्रॉब्लम ऑफ चर्न प्रिडिक्शन, जो कि एक ML प्रॉब्लम है which predicts that whether the answer will be yes or no.
जब मैं आपसे पूछ रही हूं रिगार्डिंग हाउ मेनी यूनिट्स विल वी सेल, इट मीन्स मैं बात कर रही हूं ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, विच इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, डिमांड फोरकास्टिंग। जब मैं आपसे पूछ रही हूं कैन वी ऑटोमेट कंटेंट क्रिएशन, इसका मतलब मैं बात कर रही हूं विद ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ टेक्स्ट जनरेशन विद जेन एआई। तो आपके पास में एक कॉन्क्रीट वे होना चाहिए कि हाउ कैन आई कन्वर्ट this problem into a data science problem? How can I translate this business problem into a data problem? So always remember, a good data science always starts with the right business questions. And that's what we have to do. That's what we have to perform, right? So always try to understand the business context. Try to identify data sources. And based on that data, check the output label. What are they expecting from us? And accordingly, you will be able to understand ki whether it should be of a machine learning specific problem or it should be of a Gen AI specific problem. Gen AI को समझना बहुत easy है। अगर आपका काम जनरेट करने का है तो Gen AI में जाओगे। अगर आपका काम प्रिडिक्ट करने का है, प्रिडिक्शन में भी अब किस तरीके की प्रिडिक्शन है, क्या वो क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक टास्क के विद रिस्पेक्ट है या फिर रिग्रेशन स्पेसिफिक टास्क के विद रिस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड व्हाट स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स वी शुड यूज इन एमएल एज वेल। और इसके बारे में हम आने वाले डिस्कशंस में बात करेंगे। सो इज दिस क्लियर टिल सो फार, जितना भी आज हमने डिस्कस किया? एनी क्वेश्चंस एनीवन इज हैविंग?